नमस्कार, आप सभी का एडुसेट ब्रॉडकास्ट में स्वागत है। मैं पूनम यादव शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से जीव विज्ञान के थ्योरी सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। इस लेक्चर को डिस्कस करने के बाद बच्चों आपको समझ में आएगा कि सेकेंडरी ग्रोथ में जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनका क्या मीनिंग होता है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है और सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट, स्टेम और रूट्स में किस प्रकार से होती है, एंड द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट, स्टेम एंड रूट्स क्यों होती है, अर्थात पौधों में जो स्टेम और रूट पार्ट है, स्पेशली इन केस ऑफ डाइकोट्स, वो सेकेंडरी ग्रोथ क्यों दिखाता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टर्म्स relating to the secondary growth in plants. First is vascular cambium. Vascular cambium हम किसे कहते हैं? It is the lateral meristem present in the mature regions of roots and shoots of many plants. अर्थात पौधों के रूट और शूट पार्ट में जो मेरिस्टेमेटिक पोर्शन प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज वेस्कुलर कैम्बियम। सेकेंड इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इट इज द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। थर्ड इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, द कैम्बियम formed of medullary rays and present between the vascular bundles. Next is, what is medullary ray? The parenchymatous pith present in between vascular bundles in dicots is called as the medullary ray. Next is, what is phallogen? Phallogen is the meristematic tissue arising in the cortex area. Phallum, it is the tissue produced due to the activity of phallogen. Phalloderm, the tissue produced on the inner side of cortex. Lenticell, it is the opening in the bark for exchange of gases. Now let us start the topic secondary growth in plants. Students, the growth of roots and stem in length with the help of apical meristem is called primary growth. अर्थात जो लंबाई में पौधा ग्रो करता है उस ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। Apart from the primary growth, most dicotyledons exhibit an increase in girth due to the activity of secondary meristem. अर्थात अधिकांश जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उनमें लंबाई के साथ साथ आफ्टर मैच्योरिटी उनकी चौड़ाई अर्थात गर्थ में भी बढ़ोतरी होती है, और ये बढ़ोतरी सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से होती है, जो कि एक डिवाइडिंग टिश्यू होता है। दिस इंक्रीज इज कॉल्ड एज secondary growth. The tissues involved in secondary growth are the two lateral meristems which occur in mature regions of roots and shoots of many plants, particularly those that produce woody axis. Vascular cambium is the first, which is the meristematic layer that is responsible for cutting off vascular tissues, that is the xylem and phloem. Second is the cork cambium, which is another meristematic tissue present in the cortex area. To study the secondary growth in dicot plants, it is very important to know the anatomy of dicot stem and monocot stem, and as well as the dicot and monocot roots. So this picture shows clearly the internal structure of the dicot stem. The layers are clearly visible, which from the outer side are epidermis, collenchyma, parenchyma, endodermis, pericycle, phloem, and in between the phloem and xylem there is a layer of flattened cells which is called as cambium. In the center or core area pith is present. Similarly, in the anatomy of monocot stem, you can very well see the difference in the arrangement of vascular bundles. In monocot stem, the vascular bundles are scattered in between the pith area. Let us study the secondary growth in dicot stem.
The secondary growth is absent in the monocot plants and some aquatic dicots. However, some monocot plants such as Dracaena, Yucca and Aloe etc., they show the secondary growth, but this growth is different from that in dicots. Secondary growth in dicot stem can be studied with following points. First of all, there is the formation of cambial ring. In dicot stem cells of cambium, present between the xylem and phloem is the intrafascicular cambium. अर्थात डाइकोट स्टेम के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम जो दोनों वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके बीचों बीच एक लेयर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की प्रेजेंट होती है. द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक, यानी उसके आसपास जो मेडुलरी रेज की जो सेल्स हैं जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ प्रेजेंट हैं, दे ऑल्सो बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड they form the interfascicular cambium. So, due to the formation of interfascicular cambium and with the intrafascicular cambium, a continuous ring of cambium is formed. Now, next is the activity of cambial ring, यानी ये जो complete ring बन जाती है ये किस प्रकार से कार्य करती है. The cambial ring becomes active and begins to cut off new cells both towards inner and outer side, यानी अपने अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों ही एरियाज में डिवीज़न के द्वारा सेल्स ऐड करती हैं. द सेल्स कट ऑफ टुवार्ड्स द पिथ, यानी अंदर की तरफ जो सेल्स बनाई जाती हैं, दे मैच्योर इन द सेकेंडरी जाइलम, यानी ये सेकेंडरी जाइलम बनाती हैं. एंड द सेल्स कट ऑफ टुवार्ड्स द पेरिफेरी, यानी जो बाहर की तरफ सेल्स बनती हैं, दे मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोएम. The cambium is generally more active towards the inner side than on the outer side. यानी कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो अंदर की तरफ जाइलम सेकेंडरी जाइलम बनाने की तरफ अधिक होती है इन कंपैरिजन टू द आउटर साइड. एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम एंड सून इट फॉर्म्स अ कॉम्पैक्ट मास. In this picture you can see the different stages of secondary growth in case of a dicot stem. Transfer section के द्वारा ये जो stages हैं dicot stem के अंदर secondary growth की उन सबको दिखाया हुआ है. पहली पिक्चर है जिसमें केवल इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एक ग्रीनिश येलो कलर के लाइन के रूप में नज़र आ रहा है. जो सेकेंड स्टेज है उसमें इंट्रा और इंटर दोनों ही कैम्बिया ने मिलकर एक रिंग बना ली है जिसको कैम्बियल रिंग का नाम दिया गया है. और थर्ड स्टेज में कैम्बियल रिंग के अंदर और बाहर दोनों तरफ डिवीज़न दिखाया गया है जिसके द्वारा सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है. द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रश्ड ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस अक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम. प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो बहुत ऐड होती जाती हैं अंदर और बाहर दोनों ही तरफ, देयरफॉर देयर इज क्रशिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम. द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट इन और अराउंड द सेंटर. एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म्स अ नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमा, एक लंबी स्ट्रिप के रूप में, एक लाइन के रूप में, एक रेखा की तरह बनाती है, विच पासिस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन रेडियल डायरेक्शंस. जैसा कि जो पहले पिक्चर आपको दिखाई हुई थी उसमें कुछ किरणों के रूप में, रेखाओं के रूप में नज़र आती हैं जो कि पेरेन्काइमेटस एरिया होता है. सच पेरेन्काइमा बैंड्स आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेडुलरी रेज. नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स. एनुअल रिंग्स क्या होती हैं और वो किस प्रकार बनती हैं? द कैम्बियल एक्टिविटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरिएशंस इन climatic conditions. In winters, the cambial activity is very slow and secondary tissues have fewer vessel elements with narrow lumens. यानी सर्दियों के दिनों में जो डिवीज़न की एक्टिविटी होती है वो कम होती है, तो इसलिए जो वेसल एलिमेंट्स बनते हैं उनका ल्यूमन या खाली स्थान जो होगा वो कम होता है और नंबर ऑफ सेल्स भी कम होता है. द सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस्ड इन विंटर इज कॉल्ड विंटर वुड एंड दैट विच इज प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड.
In transverse section of stem, these two types of wood appear in the form of concentric circle. पिक्चर से देख सकते हैं क्लियर कट रिंग्स के रूप में नज़र आती हैं, और ये रिंग्स जो हैं ये विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन में डिफरेंट काइंड ऑफ डिवीज़न, डिफरेंट स्पीड ऑफ डिवीज़न ऑफ सेल्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है. दीज रिंग्स आर कॉल्ड एज एनुअल रिंग्स. अ स्प्रिंग वुड सर्कल टुगेदर विद द विंटर वुड, यानी हम एक एनुअल रिंग किसे कहेंगे? एक स्प्रिंग वुड का सर्कल प्लस एक विंटर वुड का सर्कल, दोनों को मिलाकर जो एक रिंग बनती है, दैट रिंग इज कॉल्ड एज एनुअल रिंग. दस ईयर आफ्टर ईयर, यानी हर साल एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है, और एक एनुअल रिंग के फॉर्मेशन का मतलब है उतनी ही स्टेम की चौड़ाई बढ़ती जाती है. द rings are added into girth of stem, and the number of rings in the oldest part of tree can give the idea of age of tree. जितनी नंबर ऑफ रिंग्स बनी हैं हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उतने ही साल उस पेड़ की आयु है. इन सम वुडी ट्रीज, यानी जो पेरिनियल टाइप के पेड़ होते हैं जैसे कि शीशम का है जिसे दलबर्जीस कहते हैं, द रिंग्स ऑफ लार्जर वेसल्स, यानी जो स्प्रिंग वुड में लार्जर वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, दे ऑल्टरनेट विद द रिंग ऑफ स्मॉलर वेसल्स. इस तरह की जो वुड होती है दैट इज कॉल्ड एज रिंग पोरस वुड. उसी प्रकार से कुछ दूसरे प्लांट्स या दूसरे ट्रीज जैसे एजार्डियोटिका, जिसे नीम भी कहते हैं, द वेसल्स ऑफ यूनिफॉर्म डायामीटर आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द विंटर एंड स्प्रिंग वुड, यानी उसमें देयर इज नो डिफरेंस. The vessels of spring and winter wood are distributed uniformly. इस तरह की जो wood होती है that is called as diffuse porous wood. Now there is activity of cork cambium, यानी vascular cambium के साथ जो secondary growth में दूसरा टिश्यू पार्ट प्ले करता है जिसे हम cork cambium या phellogen कहते हैं, उसकी एक्टिविटी किस प्रकार से कार्य करती है? Due to the addition of secondary vascular tissues, a great pressure and strain is exerted on the cortical and epidermis layer of stem. यानी vascular cambium के डिवीज़न के द्वारा जब नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं टुवार्ड्स इनर एज वेल एज आउटर साइड, तो उनके एडिशन से जो आउटर लेयर है कॉर्टेक्स या एपिडर्मिस की, उस पर एक प्रेशर या दबाव पड़ता है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट प्रेशर द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मल लेयर, यानी ये दोनों लेयर्स जो हैं दे आर ब्रोकन एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स, यानी उनकी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता हो जाती है. दिस रीइंफोर्समेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉर्टेक्स इज नाउ डन ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम. यानी बाहर की लेयर्स को प्रोटेक्ट करने का या रीइंफोर्समेंट करने का जो कार्य है वो कॉर्क कैम्बियम के द्वारा किया जाता है. कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूसेस कॉर्क टुवार्ड्स द आउटर साइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स टुवार्ड्स द इनर साइड. कॉर्क को हम फैलम भी कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन कहा जाता है. और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो कि अंदर की तरफ एडिशन होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेलोडर्म. द फैलम यानी कॉर्क, द फेलोडर्म यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स, एंड द फेलोजन यानी कॉर्क कैम्बियम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द पेरिडर्म यानी आउटर लेयर. इट एक्ट्स एज सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू फॉर द स्टेम्स. बाहर से स्टेम की प्रोटेक्शन में ये हेल्प करता है. द सेल्स ऑफ फैलम आर नॉर्मली सुबेराइज्ड, यानी डिपोजिशन होता है सुबेरिन नामक पदार्थ का, एंड आर इम्परवियस टू वाटर एंड एयर, यानी पानी और हवा को अंदर आने नहीं देती. फॉर दिस रीजन cork cambium produces special structures called lenticels in the phylum here and there. Lenticels are composed of loosely arranged parenchyma cells having plenty of intercellular spaces. Intercellular spaces का ये फ़ायदा हो जाता है कि वहाँ एयर स्टोर होकर रह सकती है, तो इसलिए जो अरेंजमेंट होता है उसमें parenchyma cells loosely arranged होती हैं. This loose parenchyma gets connected to atmosphere after rupture of epidermis and helps the stem in aeration and water loss during lenticular transpiration.
इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक ब्रोकन लेंटिसेल यानी ऊपर से बस्ट हुई लेंटिसेल का जो डायग्राम दिखाया हुआ है उसमें एपिडर्मल लेयर जो है वो टूट चुकी है और नीचे जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं दे आर लूजली अरेंज्ड। उसके नीचे एक फ्लैटेंड सेल की लेयर दिखाई दे रही है जिसे कोर्क कैम्बियम द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है एंड बिलो दैट देयर इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। द कॉर्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। Cork of oak tree peels off as sheath every year and is used commercially as stopper for bottle. Bottles में जो stoppers लगाए जाते हैं वो कॉर्क का जो पेड़ है उसकी बाहरी जो शीत है यानी जो बार्क है उसकी पीलिंग ऑफ के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी उसकी हर साल शीट्स जो हैं वो हटती जाती हैं और उन्हीं की हेल्प से उन्हीं के द्वारा ये स्टॉपर्स तैयार किए जाते हैं। इट इज़ लाइट, हाईली कंप्रेसिबल एंड डज नॉट कैच फायर ईजिली। It is also used for insulation, shock absorber and sports goods. Bark is used for the tissue external to the vascular cambium, यानी जिसे हम आम भाषा में छाल कहते हैं पेड़ की, वो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं यानी कोर कैम्बियम का जो पार्ट है जो कि ब्रोकन अप होकर या रप्चर होकर अलग हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज बार्क। इट इंक्लूड्स periderm, the cortex, the pericycle and primary and secondary phloem, यानी वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं दे आर इंक्लूडेड इन बार्क। नेक्स्ट इज हार्टवुड एंड सैपवुड। सबसे पहले आइए जानते हैं कि वुड क्या होती है। बॉटनी की भाषा में सेकेंडरी जाइलम को वुड कहा जाता है। हार्टवुड या ड्यूरामेन, एज द सेकेंडरी ग्रोथ कंटिन्यूज, a part of secondary xylem in the central region of old stem becomes non-functional। जिस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ चलती रहती है तो उसके दौरान सेकेंडरी जाइलम का जो कुछ पार्ट है इट बिकम्स नॉन फंक्शनल। द वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ दिस नॉन फंक्शनल जाइलम गेट फिल्ड विद रेजिन्स, टेनिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द नेबरिंग लिविंग सेल्स, यानी हम जब कहते हैं कि नॉन फंक्शनल हो गया तो इस नॉन फंक्शनल जाइलम की जो सेल्स होती हैं उनमें रेजिन्स या टेनिन्स भर जाते हैं। सम वेसल्स बिकम प्लग्ड बाय ब्लैडर लाइक इन ग्रोथ्स ऑफ पेरेन्काइमा थ्रू द पोर्स इन द लेटरल वॉल्स, दीज आर कॉल्ड एज टाइलोसिस। यानी टाइलोसिस हम उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जब जाइलम की जो वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं बाय द इन ग्रोथ्स ऑफ पेरेन्काइमा। The central non-functional xylem becomes dark and is called as heartwood or duramen, यानी duramen या heartwood is the central non-functional part of xylem. Second type of wood is called as sapwood or alburnum. It is light colored peripheral region of the wood. Heartwood जहाँ central part था वहीं sapwood या alburnum जो है वो पेरिफेरल रीजन होता है वुड का। इट इज़ लिविंग एंड सर्व्स द फंक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम द रूट इनटू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सैपवुड या एल्बर्नम का जो पार्ट होता है इट इज़ फंक्शनल इन नेचर एंड हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। एज द प्लांट एजेस, ये जैसे जैसे बड़ा होता है, न्यू रिंग्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम आर एडेड टू द सैपवुड एंड मोर ऑफ इनर लेयर्स ऑफ सैपवुड आर चेंज्ड इनटू हार्टवुड, यानी बाहर की तरफ से जैसे जैसे एडिशन होता है न्यू लेयर्स का उसी प्रकार साथ साथ जो बाकी की लेयर्स हैं सैपवुड की दे आर कन्वर्टेड इनटू हार्टवुड। लेकिन जो टोटल विड्थ है सैपवुड का इट ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम, क्योंकि जो जितनी बाहर से ऐड होती हैं उतनी ही पहले वाली में से कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू हार्टवुड। द वुड प्रोड्यूस्ड बाय द जिम्नोस्पर्म्स इज कॉल्ड सॉफ्ट वुड और नॉन पोरस वुड एज इट लैक्स जाइलम वेसल्स। जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में जाइलम वेसल्स नहीं होती तो उनकी जो वुड होती है उसे सॉफ्ट वुड कहा जाता है। वहीं जो एंजियोस्पर्म्स की जाइलम में जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं देयर वुड इज कॉल्ड एज हार्ड वुड। नेक्स्ट इज व्हाई डू द स्टेम्स अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ। स्टेम्स में सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है। सेकेंडरी ग्रोथ में जैसा कि हम जानते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द थिकनिंग ऑफ प्लांट एक्सेस ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। एज द प्लांट्स ग्रो लार्जर more vascular tissue is needed for water conduction and transport of nutrients। जैसे जैसे
प्लांट या ट्रीज बड़े होते हैं तो उन्हें ज़्यादा वेस्कुलर टिश्यू की ज़रूरत होती है, बिकॉज मोर वाटर कंडक्शन इज नीडेड, मोर न्यूट्रिएंट्स आर needed to be transported. The vascular tissue that results from primary growth is not sufficient. वो पूरा नहीं होता उनकी कंडक्शन को पूरा करने के लिए. Therefore, more vascular tissue is made from vascular cambium, which is one of the lateral meristems. The additional vascular tissues do not function exclusively as water and nutrient conductors. Older xylem in the core of axis plays an important role in support. In larger plants such as woody trees, while older phloem along with tissues produced by the cork cambium can act as protective covering for a plant, replacing the epidermis in the older parts of the plant. That's all about the secondary growth in the dicot stems. Next is the secondary growth in dicot roots. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डाइकोट और मोनोकोट रूट की स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है. सबसे बाहरी लेयर जो एपिडर्मिस की है, उसके बाद कॉर्टेक्स, आफ्टर दैट पेरिसाइकल, अलग अलग कलर्स के द्वारा रूट के पार्ट्स को एग्जिबिट किया गया है. नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स. In most of the dicot roots, the secondary meristems differentiate into stele as well as in the cortex. These meristems produce secondary tissues in the concentric rings, resulting in the increase in diameter of roots. यानी secondary meristems जो हैं they are differentiated. stele और cortex के अंदर अलग अलग हो जाते हैं और secondary tissues produce करते हैं. The process of increase in girth of roots, roots भी इसी प्रकार से चौड़ाई में बढ़ती जाती हैं, due to the activity of these secondary meristems is called as secondary growth in roots. This picture shows the structure of a dicot and monocot root, जिसमें कि आप vascular bundles की arrangement में clear cut difference को देख सकते हैं. Let us follow the steps in the secondary growth of dicot root. First is the formation of vascular cambium. Vascular cambium का formation किस प्रकार से होता है? The secondary meristems produced in the stele is called vascular cambium. यानी roots में जो vascular cambium है, that is a type of secondary meristem which is produced in the stele. पहली step जो है that is the initiation of meristematic activity. cells जो हैं वो dividing state में आ जाती हैं, कुछ internal part में, कुछ बाहर की तरफ. Thus, as many strips are formed as there are phloem bundles. After this, a few cells of pericycle against every protoxylem group become meristematic and form a few actively dividing cells. इसके पश्चात pericycle की कुछ cells जो हैं, जो कि protoxylem के against present होती हैं, they also become meristematic. The cells of first form cambium strip continue dividing along their both the edges so as to reach the innermost derivative of pericycle. यानी जैसे डिवीज़न की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो पहली कैम्बियर स्ट्रिप की जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती ही रहती हैं, दे कंटिन्यू डिवाइडिंग दोनों ही एजेस की तरफ, एंड दे गिव राइज टू अ वेवी रिंग ऑफ कैम्बियम. दिस डायग्राम शोज द स्टेप्स इन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट्स. फर्स्ट स्टेप जो है उसमें रेड कलर्ड जाइलम्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं और उसके चारों कॉर्नर पर फ्लोएम प्रेजेंट है. सेकंड स्टेप में फ्लोएम की सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती हुई दिखाई गई है. थर्ड स्टेप जो है उसमें मेडुलरी रेज, वेस्कुलर कैम्बियम और सेकेंडरी फ्लोएम एज वेल एज द सेकेंडरी जाइलम इज शोन. एंड इन द लास्ट पिक्चर you can very well see the growth in the dicot roots which is well developed. Second is the activity of vascular cambium. Wavy cambium passes internal to the phloem and external to the protoxylem groups. यानी phloem के inner side पर and protoxylem के बाहरी तरफ addition start हो जाता है. Cambium now produces secondary xylem on the inner side and secondary phloem on the outer side. यानी जो नए टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है उसमें सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनता है और सेकेंडरी जाइलम इनर साइड में बनता है जो कि पित्त का रीजन होता है. द फर्स्ट फॉर्म कैम्बियम विच इज़ प्रेजेंट इनर टू द प्राइमरी फ्लोएम
it produces secondary xylem at a faster rate so that the cambium becomes circular in outline. पूरी एक रिंग बन जाती है. In general, cambium produces more secondary xylem and less secondary phloem. उसी प्रकार जैसे कि स्टेम के केस में था, xylem वाली साइड पर cambium के द्वारा more cells बनती हैं in comparison to the side which is towards the phloem. As more and more secondary tissues are produced, primary xylem groups become embedded towards the center. जो फर्स्ट फॉर्म xylem था, प्राइमरी xylem, वो सेंटर तक लिमिट हो जाता है and the primary phloem get crushed in the peripheral region. Cambium formed from the pericycle generally produces parenchyma cells. Pericycle से जो cambium की formation होती है, it makes parenchyma cells which later constitute the rays traversing through the secondary phloem, the cambium and the secondary xylem. इन रेज को मेडुलरी रेज कहा जाता है और ये मेडुलरी रेज क्योंकि पेरेनकाइमेटस नेचर की होती हैं, दे हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड वाटर टू द कॉर्टेक्स. यानी पौधों में फूड और वाटर को कॉर्टेक्स तक पहुंचाने में ये मेडुलरी रेज हेल्प करती हैं. नेक्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन एंड एक्टिविटी ऑफ कोर्क कैम्बियम. उसी प्रकार जैसे स्टेम के केस में था, कोर्क कैम्बियम बाहरी जो लेयर्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. Cells of pericycle also become meristematic and they give rise to few layers of thin walled rectangular cells to form the cork cambium or phallogen. Cork cambium का formation pericycle की cells में meristematic activity के द्वारा होता है and it gives rise to secondary tissue on the outer side, the cork or phallum. जो secondary tissue इनके द्वारा बनता है उसे हम cork या phallum कहते हैं. The cells formed towards the inner side of cork cambium. Cork cambium से जो अंदर की तरफ cells बनती हैं, they are called as secondary cortex और phalloderm. यानी बाहर वाली साइड की, आउटर साइड की सेल्स को cork या phallum कहा जाता है और इनर साइड की सेल्स को secondary cortex या phalloderm कहते हैं. During this process, the endodermis, general cortex and epiblema get disorganized and disappear. यानी एडिशन ऑफ सेल्स के कारण जो ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जैसे एंडोडर्मिस है, जैसे जनरल कॉर्टेक्स जो है, देयर ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्टर्ब्ड एंड डिसअपीयर. लेंटिसेल्स मे ऑल्सो बी प्रेजेंट इन द रूट्स हेयर एंड देयर. यानी जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है रूट्स में, उस समय जो कोर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है, तो कोर्क के अंदर कुछ लेंटी सेल्स जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए होती हैं, दे मे ऑल्सो बी प्रेजेंट हियर एंड देयर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स and I hope that you have understand the secondary growth in roots as well as stem. Thank you.